Good morning everyone. See, today we are starting our new topic, like and unlike fractions. So today we will study about what are like fractions and which are the unlike fractions. So like and unlike fractions. Okay, now see, two or more fractions with the same denominators are called like fractions. See, which have the denominators as same, 7 by 10, 8 by 10, 3 by 10. See, these all have the denominators as same, so these are known as like fractions. Okay, now see, if the denominators are different, 7 by 10, 3 by 9, 5 by 6. See, here denominators are all different, so these are known as unlike fractions. Unlike fractions. Okay, if the denominators are given, they are same. अगर denominator same दिए हुए हैं तो वो like fractions होगा, और denominator अलग दे रखे हैं, different denominators है तो वो unlike fractions. Okay, now see, conversion of unlike fraction into like fraction. देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है 3 by 8, 5 by 6 एंड 7 by 12. इसमें तीनों डिनोमिनेटर्स अलग है, इट मीन्स इट इज अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन. अब आपको इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो फॉर चेंजिंग दिस अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, व्हाट यू हैव टू डू? First of all, see all the denominators which are the denominators here 8, 6 and 12. So for changing it into like fraction or for making the denominators same, you have to take here LCM 8, 6 and 12. जो भी आपको denominators दे रखे हैं, अलग अलग denominators दे रखे हैं, यहाँ पे इनका LCM निकालना है आपको. क्यों निकालना है? क्योंकि हमें denominators सबके सेम करने हैं, इनको like fraction में चेंज करना है. So take the LCM. 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2s are 4, 3, 2 3s are 6, 1 3 3, 1 1 1. So what is the LCM you are getting here? 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So what is the LCM you got here? 24. Now see, what is the first value you got here? 3 by 8. अब ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 8 में कि आपका आंसर 24 आ जाए. तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24. अगर आपने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 3s are 9 एंड 8 3s are 24. नाउ 5 by 6 ले लो. 6 में ऐसा मल्टीप्लाई करो नंबर कि 24 आ जाए. मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4s are 20 एंड 6 4s are 24. अब 7 by 12. 12 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है 24 आ जाए. ऑब्वियसली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. हियर ऑल्सो 2. सो 7 2s are 14 एंड 12 2s are 24. सो हियर ऑल द डिनोमिनेटर्स वी गॉट सेम 24. सो वी हैव चेंज्ड इट इनटू अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन. ओके, नाउ सी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन that you have to read out it. Now see, when denominators are multiples, which of the fractions is greater you have to show here. See 3 by 8 और 5 by 16. अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर दिया हुआ है. तो दैट यू हैव टू फाइंड. नाउ सी हियर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, न्यूमरेटर इज डिफरेंट. न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर हमारे सेम होनी चाहिए. तो अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द LCM. सो 2 4s are 8, 2 8s are 16. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So LCM is equal to 16. अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 16 दिया हुआ है. सो इसमें 16 लाने के लिए 8 2s are 16, 6 by 16 एंड 5 by इसमें 5 by 16. अब आपको बताना है कि 6 by 16 बड़ा है, 5 by 16 बड़ा है. यस, 6 by 16 इज ग्रेटर. अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप न्यूमरेटर देख के कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा. न्यूमरेटर में आपको 3 छोटा दिख रहा है, 5 बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? अब देखो इधर 6 by 16 हमें किससे मिला? 3 by 8 से. तो 3 by 8 इज़ ग्रेटर देन 5 by 16. ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में. वो हमें जिससे ये नंबर मिला है वो नंबर लिखना है, ना कि 6 by 16 ग्रेटर देन 5 by 16. Directly you have to write the what is the question, what they are asking in the question, that is 3 by 8 is greater than 5 by 16. That is your answer.
नाउ सी सारे क्वेश्चन एक जैसे दे रखे हैं एग्जाम्पल में. सो एग्जाम्पल नंबर 15 similar question is given in the exercise also, so we will solve directly exercise. So start exercise 6D. Question number first, compare the fractions and fill in the boxes using greater than, smaller than or equal to. So 1/6 a, 3/6. First of all check out the denominators are already सेम हियर, सो नो नीड टू चेंज द डिनोमिनेटर्स. 1/6 एंड 3/6. अब इसमें आपको खुद को पता चल रहा है कि 3/6 बड़ा है 1/6 से. अब बी वाला देखो, 3/7 एंड 2/7. अब इसमें भी डिनोमिनेटर्स आर सेम हियर, सो 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7. नाउ सी इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम हियर, सो यू हैव टू सॉल्व इट. जस्ट सी द न्यूमरेटर्स एंड फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर और इक्वल नंबर. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Evaluate and fill in the boxes using greater, smaller, equal to. Now see, 3/4, 2/3. Now see 3/4 और 2/3 में हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है. अब इसमें आप देख लो द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम. 4 और 3 का एलसीएम ले लो. 2 2 4, 3 1 3 1 1. एलसीएम इज इक्वल टू 12. ओके, नाउ सी 3/4 और 2/3 में हमें पता करना है. तो 3/4 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि एलसीएम क्या आ जाए 12. 4 3 जार 12. इसमें भी ऐसा ही नंबर मल्टीप्लाई करना है 4. 3 4 जार 12, 2 4 जार सॉरी यस, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है. 3 3 जार 9 12. अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है. 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12. लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व हियर दिस वन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी you solve it. I will solve question number E. 8/15 and 3/4. अब देखो both the numbers are different, so take the LCM of 15 and 4. LCM is equal to 60. Now see 8/15. 15 मल्टीप्लाई बाय 16 लाना है हमें. LCM 16 आया तो यहाँ पे 16 लाना है. 4 4. अब 3/4. 4 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि 60 आ जाए. तो 4 मल्टीप्लाई 14 4 20 14 13 सो 4 मल्टीप्लाई बाय 15. इसमें 15 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 15 मल्टीप्लाई कर दो. नाउ सी 32/60. Now see 45/60. Now which number you can see here greater? That is 45/60. Okay, अब इधर देखो. अब आपको क्या करना है? Which number is greater here? 3/4 is greater than 8/15. अब आपको कैसे पता चला? जब आपने सॉल्व किया. अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे इस नंबर को ग्रेटर बता देते 8/15 को, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता. तो सॉल्व इट देन राइट द आंसर्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. यूज द LCM मेथड एंड फिल इन द बॉक्सेस. Question number 3 is same as question number 2. See question number 3 A. 5/12 4/9. अब दोनों का LCM ले लो पहले. 12 और 9 का. तो टेक बाई 2. 2 6 जार 12 9. 2 3 जार 6 9. 3 से लिया 3 1 जार 3 3 3 जार 9. Here 1 1. Now 3 3 जार 9 9 2 जार 18 18 2 जार 36. Okay, now see 5/12 4/9. अब आपको LCM 36 आया तो यहाँ पे 36 लाना है.
तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 4. Now see 5 3s are 15, 36, 16, 36. Now which number is greater? 16 by 36 is greater than 15 by 36. So take here 4 by 9 is greater than 5 by 12. Okay, now see question number 4. Question number 3, that all questions you have to solve because all questions are similar to question number 2 and 3 questions I have already solved it. So question number 4 we will solve now. See question number 4. A. 3 by 12 is equal to 1 divided by books. In denominator you have to write what is the number you are getting here. See 3 by 12 means यहाँ पे 1 आ रहा है. It means they have divided 3 1s are 3, 3 4s are 12. It means box में क्या आएगा यहाँ पर 4. Okay, so that is your answer. Now see question number 2. 5 by 6 is equal to बॉक्स दे रखा है 18 दे रखा है. अब यहाँ पे 18 कैसे आया? ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कि यहाँ पे 18 आ गया तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3. तो 5 में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं किया है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 बाई 18. दिस इज योर आंसर. नाउ सी 3 बाई 21 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 दे रखा है. इट मीन्स इन्होंने डिवाइड किया है तो 3 1s are 3, 3 7s are 21. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी. 7 बाई 12 इज इक्वल टू 21 दे रखा है. अब यहाँ पे ऐसा नंबर इन्होंने मल्टीप्लाई किया है कि यहाँ पे 21 आ जाए. तो 7 3s are 21 एंड 12 3s are 36. तो बॉक्स में क्या आएगा 36. अब okay, now see rest of the questions you can do it by yourself. Now see I will solve question number 5. Arrange each of the following group of fractions in ascending order. Ascending order में आपको इनको अरेंज करना है. So question number first I will solve 2 by 11, 1 by 11, 5 by 11, 7 by 11 and 3 by 11. Now see in this all the numbers denominator is given same. So directly you can arrange it 1 by 11. आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. तो सबसे पहले आपको छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा नंबर दे रखा है 3 by 11, फिर उससे 2 by 11, उससे बड़ा नंबर दे रखा है 3 by 11, फिर 5 by 11 एंड 7 by 11. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. डी 9 by 2, 9 by 5, अब देखो यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स अलग दे रखे हैं 2 5 3 4. तो सबसे पहले टेक द एलसीएम 2 5 3 एंड 4 का एलसीएम निकालना है. तो 2 से किया 2 1s are 2, 5 से कैसे आ जाएगा 3, 2 2s are 4. नो अगेन बाई 2 5 3 1, 3 से करेंगे 1 5 1 1, 5 से किया 1 1 1 1 1, 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60. सो एलसीएम इज इक्वल टू 60. नाउ सी अब सारे डिनोमिनेटर्स में हमें 60 लाना है एलसीएम में. सो सी 9 by 2 में आपको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है 2 में कि 60 आ जाए तो 30. अब यहाँ ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करो 270 by 60. नाउ सी 9 by 5 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि 60 आ जाए. ओके, नाउ 5 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा. तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा. ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ सी 12 9s are 108, हियर 60. नाउ सी 9 by 3 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि 60 आ जाए. 20 ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो 180 60. नाउ 9 by 4 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि 60 आ जाए. 10 टाइम करेंगे 15, ऊपर भी 15 से कर दो दैट इज 60.
135। अब देखो सारे नंबर्स, अब आप देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दे रखा है 108, सो 108/60। अब 108/60 कौन से नंबर का है 9/5, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया 9/5। अब उससे बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है यहाँ पे 135। 135 कौन से नंबर का था 9/4 का, तो 9/4। अब उससे बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है यहाँ पे 180। 180 9/3 का था। अब इससे बड़ा नंबर 270, दैट इज ऑफ 9/2। ओके, अब आपको डायरेक्टली ये नहीं लिखना है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। आपने ये नंबर कहाँ से फाइंड किया, कौन से नंबर से फाइंड किया 9/5 से। ये वाला नंबर कौन से फाइंड से किया, कौन से नंबर से फाइंड किया 9/2 से। ये वाला नंबर 9/3 से, ये वाला नंबर 9/4 से। तो आपको डायरेक्टली ये नंबर लिखना है, ना कि ये वाले नंबर। ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस आर मोर रिमेनिंग हियर। Now see question number C and D. Question number D I will solve. 2/7, 13/35, 11/14 and 15/28. तो सबसे पहले तो आप LCM ले लो 7, 35, 14 और 28 का। तो डायरेक्टली 2 से ले लो पहले 7, 35, 2 7 जार 14, 2 जार 2 4 जार 8, 2 से 7, 35, 7, अब 7 से ले लो डायरेक्ट 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, 1 1, 5 से मल्टीप्लाई किया 1 1 1 1। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, 2 जार 4, 4 7 जार 28, 28 मल्टीप्लाई बाई 5, 140। अब आपको यहाँ पे क्या लाना है 140 लाना है। तो LCM इज इक्वल टू 140। अब 2/7 में 7 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि 140 आ जाए। तो दैट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 20, हियर ऑल्सो 20। सो हियर यू आर गेटिंग 2 2 जार 4, 40 एंड 140। अब 13/35, 13/35, 35 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि 140 आ जाए, मल्टीप्लाई बाई 4, 140 एंड 52। नाउ 11/14, 14 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे 140, तो मल्टीप्लाई बाई 10, हियर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गया 110/140। अब लास्ट 15/28। अब 28 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि 140 आ जाए, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 multiply by 5, here also multiply by 5, so here you are getting 140 75। अब देखो इसमें कौन सा नंबर आपको सबसे छोटा दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर दिख रहा है आपको 52/140, डेट इज यू गोट दिस नंबर फ्रॉम 13/30, सो 13/35 इज स्मॉलर देन 75 में 15/28 स्मॉलर देन। अब देखो इसमें सॉरी ये 40/140 ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद लास्ट में आएगा आपका 140 के लिए आएगा यहाँ पे 2/7, ओके। उसके बाद 110 के लिए 11/40, ओके। 2/7 हमें कहाँ से मिला था, यहाँ से 40/140 से सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है 2/7, इससे बड़ा हमें दिख रहा है 52/140, डेट इज़ 13/35। उसके बाद 70/140, तो 75 के लिए 15/28, फिर लास्ट में 52/140, सॉरी 110/140, डेट वी गॉट फ्रॉम 11/40, ओके। नाउ सी असेंडिंग तो हमारा हो गया, एक क्वेश्चन बचा है जो आपको करना है। अब आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मैं एक क्वेश्चन करूंगी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6, सी क्वेश्चन नंबर बी में कर देती हूँ, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है मुझे, आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है। 3/8
5/6, 2/4 एंड 1/3, 6/8। अब देखो 5 नंबर्स दे रखे, पाँचों के पहले एलसीएम निकालो। 8, 6, 4, 3, 8। 2 से निकालो, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, 2 4 जार 8। 2 से किया 2 2 जार 4, 3, 2 1 जार 2, 3, 2 2 जार 4। 2 से किया 1 3 1 3 1। 3 से किया 1 1 1 1 1। नाउ सी एलसीएम निकालने के लिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। 24 इज द एलसीएम। अब इसमें नंबर में मल्टीप्लाई करना है 3/8। 8 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाए। 3 × 3, 3 3 जार 9, 24। 5/6 में 4, 6 4 जार 24 और 5 4 जार 20। अब 2/4 में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 12/24। 1/3 में 8 का, ऊपर भी 8 का, तो 8/24। अब 6/8 में 3 का, ऊपर भी 3 का, 18/24। अब आपको इसको रीअरेंज करना है। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लेना, डिसेंडिंग मीन्स सब बड़े से छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है इसमें, 20/24 मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन। अब उसके बाद आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, साइन चेंज हो जाएंगे इसमें। ग्रेटर देन मीन्स सबसे बड़ा नंबर हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके 5/6 इज ग्रेटर देन। अब उसके बाद उससे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 18/24, 6/8। ये हमें कहाँ से मिला था, 6/8 से। ओके अब दिस नंबर इज ग्रेटर देन 12/24। सो 12/24 2/4 से हमें मिला है। अब इस नंबर के लिए, इस नंबर से ग्रेटर कौन सा नंबर है, इस नंबर से छोटा नंबर कौन सा है। अब 12/24 डेट इज यू गोट 2/4। अब 9/24 यू गोट बाय 3/8। अब दिस नंबर इज ग्रेटर देन, लास्ट नंबर इज रिमेनिंग 8/24 डेट इज 1/3। Okay, like this you have to solve this descending order numbers. Okay, so rest of the questions solve by yourself. See, today you have lot of homework, so complete your homework. Okay, first of all try to solve this all questions in your rough copy. After that complete in your classwork copy. Okay, don't make any mistake, just use your mind, nothing is there. Just remember the signs, what is given here, what is the value given here, greater value or smaller value. Okay, okay, thank you.